Today I will teach you something from English grammar, and the topic that I have chosen for today's discussion is the concept of tenses. Okay? Yes, sir. Broadly speaking, a tense has got three types. I have already told you that a tense has got three types. First one is known as present tense. First one is known as present tense. Second one is known as past tense. And third one is known as future tense. Am I right? Yes, sir. Okay. Then these three kinds of tenses have got further four subkinds. Each one of them is having four further subtypes. For example, this present tense is having its own four kinds. First one is known as, can you tell me? Present indefinite. I have already told you this. This one is known as the first kind of present tense is known as present indefinite. It's also known as what? Can you tell me? It's also known as present simple, correct? It's also known as present. You can call it present indefinite or you can call it present simple. Both are one and the same thing. Second type of present tense is known as present continuous. Yes, you are right. It's also known as what? It's also known as, can anybody tell me? It's also known as present progressive. You have forgotten it. Otherwise, I have already told you that the second one is known as present continuous. It's also known as present progressive. Third one is known as present perfect. Am I right? Yes, sir. And the last type of present tense is known as present perfect continuous. Am I right? Yes, sir. So today, similarly, this tense is also having four types. Future tense has got also four types. So in total, there are 12. 4 threes are 12. In total, there are 12 tenses. Similarly, past tense is also having four types. First one is known as past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Similarly, this one is also having four types: future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. But we will do them one by one. We cannot do all the things simultaneously. Today we will discuss this very tense, which is known as present indefinite or present simple. First type of present tense is present indefinite, or it's also known as present simple. Can anybody tell me why this tense is being used? क्या मुझे कोई कह सकता है इस टेंस में हम कब बात करते हैं या कहां पे ये इस्तेमाल होता है? Can anybody tell me? Be quick. I want your responses from boys. Why? Point number one. Point number two. Why this is known as present indefinite? इसको present indefinite क्यों कहते हैं? It's known as present indefinite because ये पूरी तरह से काम को define नहीं करता. मैंने आपको पहले ही बोला है एक बार कि indefinite इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि हम इसको दो जगहों पे इस्तेमाल करते हैं. This tense is used to indicate an action that is continue at the time of speaking. Point number one. Point number two. This tense is used with habits, with routine works. जो हमारी रूटीन के काम होते हैं ना, जब हमें कोई किसी को वो बोलने होते हैं या अपना हैबिट बोलना होता है, तो हम इस टेंस में बात करते हैं. जैसे कोई मुझसे पूछता आप क्या करते हो? मैं पढ़ाता हूं. मैं इस वक्त नहीं पढ़ाता हूं, मैं उसका अपना हैबिट बोल रहा हूं. I'm telling him my habit. I'm expressing my habit. I'm expressing my daily routine. तो जब हम डेली रूटीन किसी को बोलते हैं तो हम इस टेंस में भी बात कर सकते हैं. नंबर एक. नंबर दो, मैंने बोला हम इस टेंस में उस वक्त भी बात कर सकते हैं जो अभी काम जारी है. जैसे अभी कोई मुझसे वहां से पूछेगा, वहां से आएगा, somebody will come and knock my door and tell me what are you doing. मैं उसको क्या बोलूंगा? I teach. नहीं, मैं ये भी बोल सकता हूं I'm teaching, मैं पढ़ा रहा हूं. वो तो ज्यादा है, लेकिन वो तो प्रेजेंट का दूसरा वाला है. लेकिन मैं इस टेंस में भी आंसर दे सकता हूं. I can even answer in this tense. मैं उसको बोलूंगा I teach. हालांकि लग रहा है it seems that it's an incomplete sentence, but it is not. It's a complete sentence making a complete sense. I teach का मतलब है उर्दू में मैं पढ़ाता हूं. मैं पढ़ा रहा हूं नहीं, मैं पढ़ाता हूं. मैं बोल सकता हूं ये जवाब गलत है, सही है? Am I right? अगर कोई अच्छा उर्दू में कोई मुझसे पूछे आप क्या करते हो, मैं क्या बोल सकता हूं? मैं पढ़ाता हूं. ये सही है गलत है? सही है. ये सही है. मैं उसको बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं. मैं उसको ये भी बोल सकता हूं मैं पढ़ाता हूं. तो मैं पढ़ाता हूं ये वही वाला टेंस है. I teach. I work, मैं काम करता हूं. I run, मैं दौड़ता हूं. I play, मैं खेलता हूं. I eat, मैं खाता हूं.
आई लव मैं हंसता हूं, आई स्लीप मैं सोता हूं। ये सेंटेंस जितने भी जिसको ती और हे होता है, तीन बड़े क्या बोलते हैं उसको, टे बड़े ते, उसमें वो वाला इसी में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मैंने आपको क्या बोला, कहां कहां पे इस्तेमाल होता है? जो काम अभी हम कर रहे हैं उसी वक्त मुझे कोई पूछे तो मैं इस टेंस में बात कर सकता हूं, जवाब दे सकता हूं, नंबर एक। नंबर दो, जब कोई हैबिट होगा, मुझे किसी को अपना, जैसे कोई मुझसे पूछता है जब सुबह उठते हो तो क्या करते हो, मैं चाय पीता हूं। मैं इस वक्त चाय नहीं पी रहा हूं, मैं उसको अपना हैबिट बोलता हूं, आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। हाँ, जब आप उठते हो व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग, उसको जवाब बोलता हूं आई ड्रिंक टी, तो उसको अपना हैबिट बोल रहा हूं। अच्छा, मैं इस वक्त चाय पी रहा हूं, कोई मुझसे बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग, आई ड्रिंक टी, थोड़ा वो समझ। तो मैं दो जगहों पे इसको इस्तेमाल करता हूं, अभी काम जारी है वहां पे भी, और अपना हैबिट जब मैं बोल रहा हूं, अपना डेली रूटीन जब मैं बोल रहा हूं, वहां पर भी मैं इस टेंस में बात कर सकता हूं। इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से काम को डिफाइन नहीं करता है। तो अब आते हैं इस टेंस की फॉर्मूला की तरफ। बच्चों याद रखना चाहिए, अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें हां होती है, उसमें आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती है। नोट आप याद रखोगे, no helping verb is used, no helping verb is being used in affirmative sentence, in affirmative sentences। यानी कि इसमें हां होती है, उसमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या है एफर्मेटिव सेंटेंस की, सब्जेक्ट और उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल नहीं होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती एफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, बट इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर राइटिंग एन एफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम एफर्मेटिव, जिसमें हां होती है, मैं पढ़ाता हूं, इसमें मतलब मैं किसी चीज को यस कर रहा हूं ना, मैं किसी चीज का, इसमें हां है, ना नहीं है। अच्छा, मैं पढ़ाता हूं, आई वर्क, हाँ, आई ईट। नंबर एक, आपने नोट में याद रखा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं इस्तेमाल होती है। नंबर दो, आपको याद रखना है, इसमें हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है। ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हिच इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। A verb has got three types: first form, second form, third form, even fourth form, which is also known as the present participle form of the verb, और जिसको हम कहते हैं ing form of the verb। एक होती है first form, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, दिस इज द फोर्थ फॉर्म थे, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, याद रखना है। तो ठीक है, पहले मैं इसको रब करता हूं। तो नो, एक आपने ये याद रखा कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती है। दो ही पॉइंट क्या होते हैं यार, हाँ, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ व्हाट, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट है, इफ योर सब्जेक्ट इज ही, शी और इट, अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी और इट, यू हैव टू वर्ब प्लस एस करना है और ईएस आपको करना है। यू हैव टू ऐड द एस और ईएस टू द वर्ब, ये आपको रखना है याद। तो अब हम बनाते हैं, लेट्स मेक फ्यू सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन एफर्मेटिव सारे बनाएंगे, नेगेटिव नहीं बनाएंगे। जैसे वो टीवी देखती है, शी वॉच नहीं आएगा, वॉचेस आएगा। क्यों? मैंने आपको पहले बोला, अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, तो एस और ईएस अलावा लगेगा। तो शी वॉचेस व्हाट, शी वॉचेस टीवी, शी वॉच नहीं आएगा, शी वॉचेस आएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो शी है, वो दौड़ता है। ही रन नहीं आएगा, ही रन्स आएगा, वो दौड़ता है। वो खेलते हैं बहुत सारे, आप सब्जेक्ट को दे, प्लूरल, दे रहा क्या, वो खेलते हैं, दे प्ले, दे जो है इसके साथ प्ले आएगा। सिर्फ ही, शी, इट अगर है तो वर्ब के साथ एस आएगा या ईएस आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ब कि ऐसा आएगा कि आपको पता है ना प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो वही वाला। और आपको पता है, मैंने आपको बोला थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको एस, वर्ब को एस या ईएस ऐड करना है। तो आपको पता है ये पर्सन का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा जल्दी से मैं बताऊंगा। पर्सन में आपको बताऊंगा, देखें बच्चों इधर, फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं दो, आई और हुई। आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, दोनों है फर्स्ट पर्सन। देखिए, आई का मतलब है मैं, अगर एक से ज्यादा होगा तो हम, मैं, हम, दोनों है फर्स्ट पर्सन। अब आते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन इज यू, यू इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। यू इज व्हाट, यू इज सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, जैसे एक लड़का, यू आर ए गुड बॉय, मैं एक लड़के को कहता हूं, असल लड़के, बहुत सारे अच्छे लड़के, यू आर गुड बॉयज। सो आई हैव यूज्ड यू
in both the cases. So you is what? You is second person singular as well as second person plural. So थर्ड पर्सन की तरफ आते हैं. थर्ड पर्सन मैं जल्दी से यहां पे बताता हूं, अदरवाइज बहुत लंबा टॉपिक है. थर्ड पर्सन जो है ही और शी, इन दोनों का प्लूरल जो है दे. ये सारे जो है थर्ड पर्सन है, लेकिन ये जो दो जो है सिंगुलर है, इनका प्लूरल जो है दे है. तो मैंने आपको बोला अगर आपका सब्जेक्ट, वापस आते हैं आप, अगर आपका सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये दो ही शी और इट, तब आपको वर्ब के साथ एस अलावा लगाना है या ईएस अलावा लगाना है. लेकिन यहां पे मेरा अभी एक क्वेश्चन मार्क है. यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आपको बुक से शायद नहीं मिलेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. वो पॉइंट मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट. वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट का मतलब क्या है? यूर हेल्पिंग वर्ब शुड ऑलवेज एग्री विद योर सब्जेक्ट. दे शुड बी इन एग्रीमेंट विद ईच अदर. यानी कि आपका अगर मैंने यहां पे ही है तो हेल्पिंग वर्ब भी उसी हिसाब से होनी चाहिए. सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए. तो सवाल मेरा ये है, आपने यहां पे ही रन्स क्यों लिखा था? चलो मैंने आपको बोला थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है एस और ईएस अलावा, लेकिन सवाल मेरा अभी वहीं पे है. माय क्वेश्चन इज सेटल देयर. अगर यहां पे ही है तो रन्स क्यों है? ये तो बजाहिर लगता है, रन्स तो बजाहिर क्या लगता है? प्लूरल है. तो यहां पे ही सिंगुलर है तो यहां पे मिसमैच है बिटवीन द वर्ब एंड द सब्जेक्ट. ऐसे लग रहा है, इट सीम्स दैट दे आर नॉट इन एग्रीमेंट विद ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में नहीं लग रहे. क्यों? ये तो प्लूरल है, ये तो सिंगुलर है. ये ऐसा क्यों मसला है? वहां से आपको टीचर लोग बोल रहे हैं कि भाई बोथ शुड बी इन एग्रीमेंट विद ईच अदर. फिर मैंने ये एग्रीमेंट को तोड़ दिया. यहां पे सिंगुलर है, ही इज सिंगुलर, रन जो है प्लूरल है. इसका मैं आंसर बोल रहा हूं. एक्चुअली आई विल टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट शुड बी नोटेड एंड यू मस्ट रिमेंबर इट थ्रू आउट योर लाइफ. जब हम व्हेन वी ऐड एस or es to the noun, it becomes plural. But when we add s or es to the verb, it becomes singular. यहां पे उल्टा मसला है. जब हम s और es ऐड करते हैं वर्ब को, ये सिंगुलर बन जाती है. लेकिन जब हम s और es ऐड करते हैं नाउन को तो वो प्लूरल. जैसे नाउन, मेरे पास नाउन हो गया चीजों का नाम, जगह का नाम, शख्स का नाम. जैसे डोर, डोर्स, विंडो, विंडोज, चेयर, चेयर्स, बॉय, बॉयज, कैट, कैट्स, डॉग, डॉग्स. नाउन सारे हैं. मैंने s अलावा किया तो प्लूरल बन गया. बट in case of the verb, what happens when we add s to the verb? It becomes singular. जैसे अभी do था, do जो है ना, ये प्लूरल है. जब हम इसको s es ऐड करेंगे तो ये सिंगुलर है. बजाहिर तो लगता है ये प्लूरल, मगर ये प्लूरल नहीं, ये प्लूरल है. दिस इज प्लूरल एंड दिस इज व्हाट? दिस इज सिंगुलर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको शायद बुक्स में नहीं मिलेगा. दिस पॉइंट शुड बी नोटेड. तो यही मसला है. यहां पर भी मैं एग्रीमेंट को नहीं तोड़ रहा हूं. रनस ये सिंगुलर. जब मैंने इसको देखिए, अभी गलत है. अभी मेरा वर्ब और मेरा सब्जेक्ट जो है दे आर नॉट इन एग्रीमेंट विद ईच अदर. क्यों? मेरा यहां पे सिंगुलर है, ये क्या शुड? ये तो प्लूरल. हां, रन प्लूरल है. जब मैं वर्ब को एस डालता हूं तो उल्ट बना सिंगुलर. यू गो माय क्लियर? अब ये भी सिंगुलर है मेरा, ये भी सिंगुलर है. बात आई समझ में? अभी आप देखोगे दे प्ले, दे जो है प्लूरल है, प्ले जो है ये भी प्लूरल है. अगर मैं इसको प्ले एस डालूं ये सिंगुलर बन जाएगा. क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम वर्ब को एस डालते हैं वो उल्टा सिंगुलर बन जाती है. तो अब इन दोनों में देखो, डू है करना, नूने लिखना. जिसको भी नूने लिखना आएगा उर्दू में वो वर्ब्स कहलाते हैं. मतलब ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए. तो डू जो है ये वर्ब है. जब मैंने इसको ईएस डाला तो सिंगुलर बन गई. डज सिंगुलर और डू है प्लूरल. उल्टा यहां पे याद रखें. वही वजह है कि हमें जब भी यहां पे होता है सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए सिंगुलर. अब हम करते हैं काम. अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं. अब हम क्या बनाते हैं? कुछ सेंटेंसेस हम बनाते हैं. लेकिन ऐसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे. देखो मैंने बोला इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए आपको. जैसे मैं लिखूंगा पहला सेंटेंस अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें यस होगी और उसी बात का अगर नो होगा तो नेगेटिव कहलाएगा. एंड इंट्रोगेटिव. Interrogative is what? Interrogative is a statement which is asking a question. It's a kind of a sentence in which a question is being asked. मैं एग्जांपल देता हूं. देखिए वही she watches TV. She watches TV. ये आपका affirmative sentence है. This is what? Affirmative sentence. तो इसमें कोई भी helping verb जो है बीच में नहीं है. No helping verb is there in between. इसको आपको नेगेटिव बनाना है. देखो बच्चों, सबसे ज्यादा टफ जो है नेगेटिव बनाना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को है. क्यों? इनके अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती है.
मिलेगी नहीं मिलेगी। और वहां से मैंने आपको पहले ही बोला है नेगेटिव सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बगैर तो नेगेटिव बनेगा ही नहीं आपका। तो क्या करोगे आप, कौन से हेल्पिंग वर्ब डालोगे? आपको दिमाग में जल्दी लाना है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज को लगाना है। तो डू कहां पे लगेगा, डज कहां पे लगेगा? इट डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर you will use, if your subject is singular, you will use what? You will use the singular helping verb. If your subject is plural, you will use do, which is also plural. Okay, तो इसी को नेगेटिव बनाओ, इसको नेगेटिव। She watches TV, वो टीवी देखती है। अब बताओ वो टीवी नहीं देखती है। she कैसा does? क्योंकि does, she जो है सिंगुलर है, does भी सिंगुलर है। तो यहां पे आपको समझने वाला पॉइंट है। She does नॉट, देखो हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट डालते हैं। देखो जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका ऑर्डर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट और उसके बाद मेन वर्ब। शी डज नॉट वॉच, नहीं वॉच दिया आएगा, डज ने इसको सिंगुलर कर दिया, अब ये वॉच में फिर से वापस आएगा। मैंने आपको पहले ही बोला शी डज नॉट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखती। अब इसे क्वेश्चन बनाओ, क्या वो टीवी देखती है? देखो जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं दो का तबादला होता है। हेल्पिंग वर्ब कम्स टू द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस एंड सब्जेक्ट टेक्स इट्स प्लेस, यानी इन दो का तबादला होता है। हेल्पिंग वर्ब चली जाती है स्टार्ट में, सब्जेक्ट इसकी जगह पे चला जाता है, तो उसका क्वेश्चन बन जाता है 1 सेकंड में। नॉट तो हमें फिर डालना नहीं है। जब डज आ गया स्टार्ट में तो डी कैपिटल बनेगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ओके, तो डज शी आएगा बाद में, इन दो का तबादला होगा बस। नॉट को छोड़ दो, ओमिट द नॉट, ओमिट इसको ओमिट कर दो, इसको मत लिखो। डज शी वॉच टीवी, डज शी वॉच टीवी क्वेश्चन मार्क, क्या वो टीवी देखती है? तो एक और सेंटेंस आप ही बोल दो, टेल मी 5-6 sentences बी क्विकली। ही सिंग्स ए सॉन्ग, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वो एक गाना गाता है, वो गाना नहीं गाता है। ही डू आएगा डज आएगा? कैसे डू आएगा? ही डज, ही सिंगुलर है तो डज सिंगुलर है। योर हेल्पिंग वर्ब शुड ऑलवेज एग्री विद योर सब्जेक्ट, दे शुड बी इन एग्रीमेंट विद ईच अदर। आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू दिस थिंग। तो ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वो गाना नहीं गाती है। क्या वो गाना गाती है? Does she sing a song? Does she sing a song? Sorry, does आएगा स्टार्ट में, इसकी जगह चला जाएगा he। Does she, he है क्या सब्जेक्ट? हाँ he। Does he sing a song? Question mark. Your your interrogative sentence should always end with a question mark. यहाँ पे question mark. अब आप boys, from boys, tell me one sentence quickly. जो आप बोलोगे भाई सब्जेक्ट को चेंज भी करो ना, कंटिन्यूअसली चेंज योर सब्जेक्ट एंड द वर्ब एज वेल। अब हम दे पे बनाएंगे, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसी बात का इनकार कर दो। लेकिन देखो बच्चों एक चीज आपको बताऊंगा, जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं ना किसी चीज का, टेंस शुड नॉट गेट चेंज्ड। उसका टेंस, जैसे आप नेगेटिव बनाओगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है, नेगेटिव बनाओगे पास्ट में, वो गलत होगा आपको। जब भी आप नेगेटिव बनाते हो तो उसका टेंस जो है चेंज नहीं होना चाहिए, इसी का इनकार कर दो। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, अब बोलो वो क्रिकेट नहीं खेलते। दे, यस दे जब है ना, देखो जब आपने सब्जेक्ट लिखा तो 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। योर सब्जेक्ट विल ऑटोमेटिकली टेल यू कि आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी। दे जब है तो कौन सा है? दे क्या है? प्लूरल है। दे मींस हम, वारिया, एक से ज्यादा है। दे जो है तो इसके साथ कौन सा आएगा? डू, डू क्या है? प्लूरल है। यस, डज जो है वो सिंगुलर है। दे डू, उसके बाद नॉट डाल दो। जब भी आप नेगेटिव बनाओगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट डालना होता है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? इनका तबादला होगा, डू विल कम इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट चला जाएगा। डू दे प्ले क्रिकेट question mark. So in this way you can make hundreds of sentences on present indefinite. लेकिन आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर आपको आएगा फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस एफर्मेटिव में, नेगेटिव उसका नहीं बनेगा जब तक आप डू और डज नहीं लगाओगे। व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट मेक अ नेगेटिव सेंटेंस इन द एब्सेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको पहले ही बोला है नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है हेल्पिंग वर्ब के बिना। सो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है आपको एक सेंटेंस को चेंज करने का। इसके बाद इंशाल्लाह रहमान हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस
उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर हम एक ही सेंटेंस को हम करेंगे चेंज, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे, उसके बाद उसी को चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसी सेंटेंस को उसी को चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फिर उसी को हम एक टेंस को जब हम सारे टेंस खत्म करेंगे 12 टेंस पढ़ के, एक टेंस को हम 12 टेंस में चेंज करेंगे, तो तब जाके हमें पता चलेगा कि हमें टेंस समझ में आया है या नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू। मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर